آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ہر نعمت کا ذکر بار بار ہے۔ سورہ رحمان میں ایک آیت 31 بار کیوں؟ ذرا سوچیں، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ جب اپنے دربار میں کوئی حکم جاری کرتا ہے تو وہ اپنی بات ایک یا دو بار کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار ایک ہی بات دہرانا اس کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت میں خود اللہ رب العزت نے ایک ہی جملہ پورے 31 مرتبہ دہرایا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کو سن کر انسانوں نے تو انکار کیا، مگر آگ سے پیدا ہونے والی ایک پراسرار مخلوق یعنی جنات اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے جواب نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اس تکرار کے پیچھے کیا عظیم راز پوشیدہ ہے اور اس میں چھپے وہ سائنسی اشارے جو آج کی جدید تحقیق کو بھی حیران کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس راز کی تلاش میں ہمیں 1400 سال پیچھے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جانا ہوگا، جہاں اس سورت کا پہلا لفظ سنتے ہی مشرکین مکہ کے دل دہل گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اپنے خاص نام الرحمن سے کیا تو مکہ کے سردار بے قرار ہو گئے اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ رحمان کون ہے؟ اس سوال کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وہ آج بھی ہمارے ایمان کو ایک نئی روشنی بخشتا ہے، اور مکہ کے ان سرداروں کے انکار کے بعد ہمارا یہ سفر ایک ایسے موڑ پر پہنچتا ہے جہاں یہ سورت انسانوں کے سامنے نہیں بلکہ آگ سے پیدا ہونے والی اس مخلوق کے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ مکہ کے وہ لوگ جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کیا کرتے تھے، جنہیں اپنی زبان دانی پر گھمنڈ تھا، وہ قرآن پاک کے الفاظ سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ مگر جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو معاملہ صرف حیرت کا نہیں رہا، بلکہ مکہ کے سرداروں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ جیسے ہی کائنات کے مالک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا، یہ آیت سن کر مکہ کی گلیوں میں ہلچل مچ گئی۔ مشرکین مکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مکہ کے لوگ واقعی لفظ رحمان سے ناواقف تھے یا اس کے پیچھے ان کی کوئی گہری چال تھی؟ تاریخ اور احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے کفار اللہ کو خالق اور مالک تو مانتے تھے، مگر انہوں نے اپنے لیے بہت سے جھوٹے معبود اور بت بنا رکھے تھے۔ وہ اللہ کو اللہ کے نام سے تو پکارتے تھے، مگر جب لفظ رحمان ان کے سامنے آیا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ الرحمن کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا، اور انہیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے اس نام کو تسلیم کر لیا تو ان کے بنائے ہوئے ظالم اور خوفناک بتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ دوسری وجہ ان کا غرور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ایک نئے نام کے سامنے کیوں جھکیں؟ وہ اس قدر ضدی تھے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، مگر مکہ کے سفیر سہیل بن عمرو نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، وہی لکھو جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، یعنی اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ کفار نے تو انکار کر دیا، مگر کائنات کے سچے بادشاہ نے ان کے اس اعتراض کا ایسا لاجواب جواب دیا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی الفاظ باقی نہ رہے۔ قرآن پاک کی دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اسی کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رحمان کوئی نیا خدا نہیں بلکہ وہی ایک سچا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ رحمان کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیا۔ اس نے انسانوں کو بولنا سکھایا، اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب میں رکھا، اس نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے بچھایا۔ گویا اللہ تعالیٰ کفار کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم جس رحمان کا انکار کر رہے ہو، سانس لینے سے لے کر زندہ رہنے تک تم ہر لمحے اسی رحمان کی نعمتوں کے محتاج ہو۔ مکہ کے کفار تو اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، مگر یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انسانوں نے تو اس صورت کی قدر نہ کی، مگر مکہ سے دور ایک سنسان رات میں اس کائنات کی ایک ایسی مخلوق اس صورت کو سننے کے لیے حاضر ہوئی جس کا انسانوں سے کوئی مادی تعلق نہیں تھا۔ آگ سے پیدا ہونے والی وہ مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے پہلی بار سورہ رحمان کی تلاوت سنی تو مکہ کے پہاڑوں نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جو مکہ سے دور ایک سنسان اور اندھیری رات میں پیش آیا۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کے انسانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا
और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल पर एक बोझ था। उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मक्का से दूर वादी नखला नामी एक जगह पर तशरीफ फरमा थे। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में खड़े हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आवाज में ऐसा दर्द और ऐसी मिठास थी कि रात की खामोशी में अल्फाज सीधे दिलों पर असर कर रहे थे। मगर उस वक्त वहां इंसान मौजूद नहीं थे, बल्कि हवा के दोष पर उड़ती हुई एक ऐसी मखलूक वहां पहुंच चुकी थी जिसे अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा किया था। ये जिन्नात का एक वफ्द था जो नसीबैन नामी इलाके से सफर करता हुआ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उनके कानों में कुरान मजीद की आवाज पड़ी, वो वहीं रुक गए। वो एक दूसरे को खामोश रहने का इशारा करने लगे और सब दायरा बनाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द बैठ गए। जरा उस मंजर का तसव्वुर करें। जिन्नात खामोशी से सुन रहे थे और जैसे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की वो आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो जिन्नात की रूह कांप उठी। मक्का के इंसानों ने तो इस आयत को सुनकर मुंह फेर लिया था, मगर उन जिन्नात ने इसका ऐसा खूबसूरत, आजिजाना और जज्बाती जवाब दिया कि तारीख में वो सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। जिन्नात ने तड़प कर कुछ इस तरह जवाब दिया, अय हमारे पालने वाले रब, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते और तमाम तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ते जाते और जब भी ये आयत आती कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वो पुरअसरार मखलूक यक जबान होकर कहती, ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते। जब ये सूरत मुकम्मल हुई तो वो जिन्नात ईमान ला चुके थे और अपने कबीले की तरफ सच्चे मुसलमान बनकर लौटे। बाद में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साहबा को ये बात बताई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जब जिन्नात के सामने ये सूरत पढ़ी तो वो तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे। जब भी मैंने नेमतों को झुटलाने वाली बात पढ़ी तो वो कहते थे, ऐ रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े और मरकजी सवाल की तरफ। आखिर कायनात के मालिक ने इस सूरत में एक ही जुमला पूरे 31 मरतबा बार बार क्यों दोहराया? इसके पीछे 3 बड़े और ईमान अफरोज हकायक छुपे हैं जिन्हें सुनकर आप सुभान अल्लाह क्या उठेंगे। पहला राज इंसान की गफलत और बार बार याद दहानी है। इंसान की यह फितरत है कि वो नेमतें तो इस्तेमाल करता है। पहला राज इंसान की गफलत और बार बार याद दहानी है। इंसान की यह फितरत है कि वो नेमतें इस्तेमाल तो करता है मगर बहुत जल्द भूल जाता है कि ये किसने दी हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत को 31 बार इसलिए दोहराया कि इंसान जब जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आ जाए उसे याद रहे कि उसका वजूद, उसकी सांसें और दुनिया की हर चीज उसके रब का तोहफा है। ये बार बार की तकरार दरअसल मोहब्बत का इजहार है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार प्यार से कोई बात समझाती है। दूसरा राज नेमतों की किस्मों का फर्क है। अगर आप गौर करें तो सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नेमत का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने जमीन का जिक्र किया, आसमान का किया, फलों का किया, समंदरों का किया और आखिर में जन्नत की नेमतों का जिक्र किया। हर नई नेमत का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अब बताओ इस नेमत को भी झुटलाओगे? यानी ये तकरार बेफायदा नहीं बल्कि हर बार एक नई और मुख्तलिफ नेमत पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। तीसरा राज जिनों और इंसानों दोनों से मुखातिब होना है। कुरान पाक में ये वाहिद सूरत है जहां अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी बराबर का मुखातिब किया है। क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ मखलूकात हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को झंझोड़ा है कि तुम दोनों में से कोई भी मेरी ताकत और रहमत का इनकार नहीं कर सकता। प्यारे नाजरीन, जिन्नात का वो जवाब सुनकर हमारे दिल भी पिघल जाते हैं और 31 बार की तकरार का ये राज हमारे ईमान को मजीद पुख्ता कर देता है। यहाँ एक और इल्मी नुक्ता समझना जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक ही जुमले को बार बार दोहराने की जरूरत क्यों पेश आई। अगर हम दुनियावी जबानों की बात करें तो एक ही बात बार बार बोलने से तहरीर या तकरीर का हुस्न खत्म हो जाता है, मगर अरबी अदब का ये उसूल नहीं है। पुराने दौर में जब अरब के लोग किसी बात पर ज्यादा जोर देना चाहते या सामने वाले को मुकम्मल तौर पर कायल करना चाहते तो एक ही जुमले को बार बार दोहराते थे। अरबी जबान में इस तरीके को बलागत और ताकीद कहा जाता है। सूरह रहमान में इस 31 बार की तकरार के पीछे मजीद 3 बड़ी हिकमतें छुपी हैं। पहली हिकमत ताकीद है। अल्लाह ताला इंसान को झंझोड़कर याद दिला रहा है कि तुम किसी एक नेमत के नहीं बल्कि मेरी बेशुमार नेमतों के अहाते में हो। दूसरी हिकमत हुज्जत पूरी करना है। इंसान कयामत के दिन ये बहाना ना बना सके कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ अल्लाह ने दिया। तीसरी हिकमत शुक्रगुजारी है। जब इंसान बार बार एक ही बात सुनता है तो उसके दिल में खुद ब खुद अपने अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होने लगता है। नाजरीन, अब हम आपको वह हैरत अंगेज रियाजी और तरतीब बताने जा रहे हैं।
जो इस सूरत के अंदर छुपी हुई है। ये 31 आयत पूरी सूरत में ऐसे ही बिखरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत के हिस्सों में तकसीम किया है। आइए देखते हैं कि ये 31 आयत कहां कहां और कितनी बार आई है। सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक, सूरज, चांद, दरख्तों, फलों और इंसानों की पैदाइश का जिक्र किया है। इस दुनियावी नेमतों के जिक्र के दौरान ये आयत पूरी 8 बार दोहराई गई है। गोया अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दुनिया में जीने के लिए जो कुछ मैंने दिया है, क्या तुम इसका इनकार करोगे? दुनियावी नेमतों के बाद अचानक सूरत का रुख बदल जाता है और कयामत का हौलनाक मंजर सामने आता है, जब आसमान फट जाएगा और मुजरिमों को उनके चेहरे से पहचाना जाएगा। हैरत की बात यह है कि दोज़ख और अजाब के जिक्र के दौरान भी यह आयत पूरी 7 बार दोहराई गई है। यहां तकरार का मतलब यह है कि ऐ इंसानों और जिनों, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, अब बताओ क्या मेरी इस तंबीह को भी झुटलाओगे? अजाब के जिक्र के बाद अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाता है। ये वो मुकर्रब बंदे हैं जिन्हें पहले दर्जे की शानदार जन्नतें मिलेंगी, जहां सोने और चांदी के महलात, रेशम के बिस्तर और खूबसूरत चश्मे होंगे। जन्नत के इस आला दर्जे के जिक्र के ऐलान के दौरान ये आयत पूरी 8 बार दोहराई गई है। उन आला जन्नतों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने उनसे कुछ कम दर्जे की 2 मजीद जन्नतों का जिक्र फरमाया है, जो आम मोमिनीन के लिए होंगी, और वहां के बागात, घने दरख्तों और फलों का नक्शा खींचते हुए ये आयत एक बार फिर पूरी 8 बार दोहराई गई है। अब जरा इन आदात को जमा करें। दुनियावी नेमतों में 8 बार, कयामत के जिक्र में 7 बार, आला जन्नत के जिक्र में 8 बार और दूसरी जन्नत के जिक्र में 8 बार। जब हम इन सबको जमा करते हैं तो ये तादाद बनती है पूरी 31। सुभान अल्लाह। कायनात के मालिक ने अपनी किताब में अल्फाज और मौज़ूआत को इस कदर खूबसूरत तरतीब के साथ सजाया है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ना एक नंबर आगे, ना एक नंबर पीछे। मौज़ूआत की तकसीम तो सिर्फ एक झलक है। इस सूरत के अंदर कुदरत ने कुछ ऐसे राज भी छुपा रखे हैं जिनका ताल्लुक जदीद साइंस और तहकीक से है। 1400 साल पहले कुरान ने जमीन और समंदरों के बारे में जो निशानियां बताई, आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उनके सामने सर झुकाती है। 1400 साल पहले जब इंसान के पास न कोई जदीद दौर की दूरबीन थी, ना ही समंदर की गहराइयों को नापने वाले जहाज, उस दौर में कुरान पाक ने कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि आज के माहिरीन तालीम और साइंसदान भी हैरान रह जाते हैं। जब हम सूरह रहमान को पढ़ते हैं तो कायनात के मालिक ने जमीन, आसमान, सितारों और दरख्तों के एक खास निजाम का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज एक तराजू और हिसाब के तहत काम कर रही है। मगर इस सूरत के अंदर एक ऐसी साइंसी निशानी बताई गई है जिसने समंदरी साइंस के माहिरीन को हैरत के समंदर में डुबो दिया है। सूरह रहमान में कायनात के सच्चे बादशाह ने एक अजीब मंजर का नक्शा खींचा है, जिसका आसान तर्जुमा कुछ इस तरह है। उसने 2 समंदरों को चला दिया जो आपस में मिलते हैं, मगर उन दोनों के दरमियान एक ऐसा पर्दा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। जरा रुककर इस बात पर गौर करें। 2 समंदर जो बिल्कुल एक साथ बह रहे हैं, जिनका पानी एक दूसरे से टकरा रहा है, मगर वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। सदियों तक इंसान इस बात की हकीकत को समझ ना सका। लोग सोचते थे कि अगर पानी माया है तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 समंदर आपस में मिलें भी और उनका पानी एक दूसरे में शामिल भी ना हो। मगर जब 20वीं और 21वीं सदी में जदीद साइंस ने तरक्की की, समंदरी तहकीक के माहिरीन ने समंदरों की गहराइयों में जाकर तहकीक की, तो दुनिया के सामने एक नाकाबिले यकीन सच्चाई आई। साइंसदानों ने देखा कि दुनिया में कई ऐसी जगह हैं, जैसे बहरे रूम, बहरे ओकियानूस, जहां 2 मुख्तलिफ समंदर आपस में मिलते हैं। कैमरे की आंख ने जो मंजर रिकॉर्ड किया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ का पानी गहरा नीला और दूसरी तरफ का पानी हल्का नीला। दोनों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर नजर आती है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी साइंसी वजूहात हैं। पहली वजह पानी का दर्जा हरारत है। 2 समंदरों के पानी का दर्जा हरारत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दूसरी वजह नमकीनी का फर्क है। एक समंदर का पानी ज्यादा नमकीन और भारी होता है, जबकि दूसरे समंदर का पानी कम नमकीन और हल्का होता है। और तीसरी वजह पानी की कसाफत है। पानी का एक अपना दबाव होता है, जिसकी वजह से दोनों समंदरों के बीच एक नजर न आने वाली दीवार कायम हो जाती है, जिसे साइंस की जबान में हाइड्रोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। साइंसदान कहते हैं कि इस पर्दे या दीवार की वजह से एक समंदर का पानी दूसरे समंदर में जाते ही अपनी असल हालत खो देता है और उसके अंदर जज्ब हो जाता है, जिससे दोनों समंदरों की अपनी अलग अलग पहचान और वहां की मछलियां महफूज रहती हैं। सुभान अल्लाह। जिस राज को पाने के लिए इंसान को अरबों डॉलर की मशीनें और सदियां लग गईं, कायनात के खालिक ने 1400 साल पहले एक देहाती माहौल में अपने नबी के जरिए सूरह रहमान में साफ साफ बयान फरमा दिया था। प्यारे नाज़रीन, जब एक सच्चा इंसान उन साइंसी हक़ाइक़ को देखता है तो उसका दिल पुकार उठता है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये तो उसी रब की आवाज़ है जिसने ये समंदर पैदा किए।
नेमतों का ये तस्करा, जिन्नात का वो जज्बाती जवाब, तकरार का वो कमाल, रियाजी और साइंस के ये हैरत अंगेज इशारे, ये सब मिलकर इंसान को झंझोड़ते हैं। मगर आखिर में ये सवाल उठता है कि ये पूरी सूरह रहमान हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है, ये हमारे दिलो दिमाग को कैसे सुकून देती है, और इसका आखिरी पैगाम क्या है। आज का इंसान हर वक्त किसी न किसी परेशानी का रोना रोता नजर आता है। हमारे पास जो नहीं है हम दिन रात बस उसी का गिला करते हैं। मगर सूरह रहमान हमें नाशुक्री के इस अंधेरे से निकालकर शुक्रगुजारी के उजाले में ले आती है। जब हम इस सूरत को बार बार सुनते हैं तो हमारा रब हमें याद दिलाता है कि अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो उसने हमारे लिए करोड़ों दूसरे दरवाजे खोल रखे हैं। ये सूरत इंसान को अंदर से बदल देती है और उसे अपने रब की छोटी से छोटी नेमत पर सर झुकाना सिखाती है। हैरत की बात यह है कि जदीद नफ्सियाती और तिब्बी तहकीक ने यह साबित किया है कि सूरह रहमान को सुनने के इंसानी जिस्म और दिमाग पर इंतहाई हैरत अंगेज असरात मुरतब होते हैं। जब एक इंसान पूरे ध्यान और पुरसुकून माहौल में सूरत की तिलावत सुनता है तो उसके दिमाग के अंदर तनाव और बेचैनी पैदा करने वाले केमिकल्स का खात्मा होता है। दिल की धड़कनें मुतवाजिन होती हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पर आ जाता है। जहनी मायूसी, खौफ और तन्हाई का एहसास खत्म हो जाता है और इंसान खुद को एक गैबी पनाह में महसूस करता है। ये सूरत सिर्फ रूह का इलाज नहीं बल्कि ये हमारे बीमार दिलों और परेशान जहनों के लिए एक बेहतरीन शिफा है। मेरे मोहतरम दोस्तों और मोअज़्ज़िज़ बहनों, 1400 साल पहले मक्का की गलियों से शुरू होने वाला ये पैगाम आज आपके मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीनों तक पहुंच चुका है। अभी फैसला हमारा है कि क्या हम मक्का के काफिरों की तरह नेमतों को झुठलाते रहेंगे या हम उन जिन्नात की तरह तड़प कर कहेंगे, ऐ अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते। आइए आज के दिन अपने रब से एक सच्चा वादा करें कि हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। जब हम इस सूरत के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं जहां अल्लाह पाक जन्नत की हूरों, वहां के महल्लात और बहते हुए चश्मों का नक्शा खींचता है तो मोमिन का दिल तड़प उठता है। कायनात का मालिक फरमाता है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं, यानी अगर तुम दुनिया में अपने रब को राजी करने का एहसान करोगे तो वो रहमान कयामत के दिन तुम पर अपनी नेमतों की बारिश करके उसका बदला चुकाएगा। ये सूरत हमें सिखाती है कि कायनात की हर चीज फना होने वाली है। यहाँ के बुलंद महल्लात, ये मालो दौलत, ये आर्जी ऐश और आराम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो सिर्फ तुम्हारे पालने वाले रब की जात है जो बड़ी अजमत और बड़े करम वाली है। जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो जाना है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहनी है, तो उसके दिल से दुनिया का खौफ निकल जाता है। उसका ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि वो जिंदगी के बदतरीन हालात में भी मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब रहमान है और वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज मक्का की वो अंधेरी रात याद करें जहां जिन्नात इस सूरत को सुनकर रो पड़े थे। आज की इस मशगूल दुनिया में हमारे पास अपने रब की किताब के लिए वक्त नहीं है, मगर अगर आज आपने ये पूरी वीडियो सुनी है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल को हिदायत की रोशनी से भरना चाहता है। अपने गुनाहों से मायूस ना हो, क्योंकि जिस रब ने अपनी किताब का आगाज ही अपने सबसे बड़े सिफाती नाम रहमान से किया हो, वो अपने बंदे को तड़पता हुआ कैसे देख सकता है। वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। आइए आज अपने सर को उस रहमान के सामने झुका दें, अपनी खताओं की मुआफी मांगें और अपनी जिंदगी को शुक्रगुजारी के सांचे में ढाल लें। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सूरह रहमान को बाज उलमा ने कुरान की दुल्हन का लक़ब भी दिया है, क्योंकि इसमें जिस खूबसूरती, तालमेल और दिलकशी के साथ अल्फाज को तरतीब दिया गया है वो किसी और सूरत में इस अंदाज में नहीं मिलती। इस सूरत की तिलावत करते वक्त एक खास सुर और आहंग महसूस होता है जो सुनने वाले के दिल को गहराई से मुतासिर करता है। यही वजह है कि सदियों से कुरा और हुफ्फाज इस सूरत की तिलावत को खास मोहब्बत और तवज्जो के साथ करते आए हैं और मसाजिद में भी अक्सर खास मौके पर पढ़ा जाता है। यह भी एक अहम नुक्ता है कि सूरह रहमान में जिस अंदाज से दुनियावी और उखरवी नेमतों का तकाबुल किया गया है वो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया की नेमतें खा कितनी ही खूबसूरत हों, उनका कोई मुकाबला जन्नत की नेमतों से नहीं हो सकता। जब अल्लाह ताला जमीन की नेमतों का जिक्र करता है तो वो महदूद और फना होने वाली हैं, मगर जब जन्नत की नेमतों का जिक्र आता है तो वो लामहदूद और दायमी है। ये तकाबुल हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत और तवज्जो किस तरफ मरकूज करनी चाहिए। इसी तरह सूरत में जिस तरह जन्नत के 4 बागात का जिक्र किया गया है, 2 आला दर्जे के और 2 उनसे कम दर्जे के, यह हमें यह समझाता है कि जन्नत में भी दरजात होंगे और ये दरजात इंसान के ईमान और अमल की बुनियाद पर मुतय्यन होंगे। ये बात हमें मजीद मेहनत और नेकी की तरगीब देती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो सबसे आला मकाम हासिल करे और उस मकाम तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ईमान, नेक अमाल और अपने रब की इताअत से होकर जाता है।
ہمارے پیارے ناظرین، اس سورت کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت رحمت کو ابتدا سے آخر تک برقرار رکھا ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہو، چاہے قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہو یا جنت کی نعمتوں کا بیان۔ ہر جگہ یہ سورت اپنے نام الرحمن کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے، حتیٰ کہ جہنم کے عذاب کا بھی ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ یہ انسان کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ توبہ کی طرف بھی راغب کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اگر ہم اس سورت کو محض زبان سے پڑھتے رہیں مگر اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں تو ہم اس عظیم نعمت سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس کے ہر لفظ پر توجہ دیں اور اپنے دل میں یہ سوال بار بار پوچھیں کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں یا ان کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس سورت کے پیغام کو شامل کریں گے۔ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اپنی زبان اور اپنے اعمال سے اپنے رب کی رحمت کا اعتراف کریں گے اور اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت اپنائیں گے تاکہ ہمارے دل نور اور سکون سے بھر جائیں۔ ہماری دعا ہے کہ کائنات کا وہ سچا مالک، وہ بے انتہا رحم کرنے والا، ہمارے دلوں کو اپنے شکر سے بھر دے۔ وہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے اور ہمیں ان مقرب بندوں میں شامل کرے جن کے لیے اس نے جنت کے شاندار باغات تیار کر رکھے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔